Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price. Just remember the pain of the Christ now. Hallelujah. Bearing all my sin and shame. Praise God. In love you came and gave amazing grace. Praise God. Thank you for this love, Lord. Yes, God. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Yes, He's worthy, church. Seated on the throne, I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God. Yes, Jesus, Son of God, The darling of heaven, darling of heaven, crucified. is crucified. Worthy is the Lamb. Yes, God. You're the worthy of the Lamb, God. Worthy is the Lamb. You're worthy in each and every effort that you made for me, God. Hallelujah. Praise Thank you Jesus. for the cross, Lord. Praise God. Amen. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came Praise God. Hallelujah. and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Yes, Lord. Thank you. Thank you for nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and Praise grace. be to God, the worthy God. Praise Him. Hallelujah. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Lord, you're seated high. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted Praise God. up, Hallelujah. Jesus, Son of God. Son of God, The darling of heaven, crucified. the darling of heaven, is crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, we believe it, God. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy Jesus. Worthy is the Praise God. Hallelujah. प्रभु जी, हम मानते कि प्रभु जी आपने हमारे लिए इतनी मुश्किल को सहा। प्रभु जी आपने इतने दुख को सहा कि परमेश्वर के आपने हमारे लिए वो दुख सहा कि हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारा जो सी गलतियां थे, गुनाह थे, हमसे दूर हो सके। हालेलुया। आज अगर इस जगह पर, इस चर्च में अगर हम प्रभु जी एकत्रित हैं, प्रभु जी तेरी महिमा के लिए, कि जो तूने किया है वो कोई कर नहीं सकता था। हालेलुया। प्रभु जी मेरे अपने मुझे छोड़ के चले जाते, पर तू कभी छोड़ता नहीं। हालेलुया।
प्रभु जी तेरा प्यार महान है प्रभु जी, और तेरे प्रभु जी मैं तेरे पास आता हूं कि प्रभु जी तेरी महिमा कर सकूं और तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं। वचन में लिखा है जो वो पूरी शिद्दत से, पूरी रूह से, पूरी सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर उसके लिए एक नया रास्ता तैयार करता है। हालेलुया। प्रभु जी आज आपके बच्चों के लिए एक नया रास्ता तैयार होने जा रहा है। हालेलुया, वी बिलीव इट गॉड। और प्रभु जी ये पूरा यकीन है कि जिस रीति से आपके बच्चे इस जगह पर आए हैं उस रीति से ये वापस नहीं जाएंगे आज, क्योंकि प्रभु जी तेरा रूह इनके साथ रहे। हालेलुया। आए पिता परमेश्वर तेरे नाम को प्रभु जी वो जलाल और महिमा मिल सके। यीशु आपके पाक और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। लेट्स रीड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। जल्दी से हम प्रभु के वचन में चलेंगे। थोड़ी सी बातें हैं जो परमेश्वर इस गुड फ्राइडे के दिन पर हमें कुछ समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट गॉड वांट्स टू टेल अस टुडे। Yes. So let's see what God wants to talk to us through this occasion of Good Friday. और जब हम प्रभु की महिमा करते हैं एक बार याद रखें कि अब जौन सा पाठ है परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करने जा रहा है। So when you worship God, the God speaks back to you. क्योंकि ये गुड फ्राइडे का दिन कोई आम फ्राइडे वाला टाइम नहीं है। So this is not a normal time that we talk about here. क्योंकि most of the people इस गुड फ्राइडे में बहुत खुश होते हैं क्योंकि वीकेंड स्टार्ट होने वाला होता So है। many people are happy because of the weekend. क्योंकि वीकेंड जब स्टार्ट होता है तो सबकी स्माइल्स बहुत अच्छी होती हैं। So when the weekend is there, we all smile. जब मंडे का मॉर्निंग का टाइम होता है तब तो शक्लें देखने वाली होती हैं। And on Monday we should check our faces. हाँ सिस्टर जी हंसे, उनको पता है। So only she knows. Nobody else know out here. Nobody work. राइट है ना, क्योंकि जब तक हम प्रभु में खुशी जाहिर नहीं करते तब तक हम परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते, परमेश्वर के रहस्य को समझ नहीं पाते। Till the time you don't know or understand the joy of the Lord, you can never understand the revelation क्योंकि of प्रभु के God. वचन में लिखा है जब मन की उदासी होती, मन की मायूसी होती, कभी भी परमेश्वर के प्यार को अनुभव नहीं कर सकते। So if you're upset in your mind and your thoughts, you cannot understand and have or examine the love of God. क्योंकि ये वाला टाइम अफसोस करने का नहीं है। Because this is not a time to be sad. प्रभु के वचन में लिखा है ये टाइम परमेश्वर में मगन होने का है, परमेश्वर की बातों को याद करना है, परमेश्वर के रहस्य को याद करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा प्राइस पे की है। So this is not the time to sad, but this is the time to understand what God has paid. He paid a very big price for us. जैसे आप गुड फ्राइडे के दिन में इस चर्च में आए हैं, एक बार याद रखिए आज आप अपनी स्लीव उठाकर इस चर्च में आए हैं। So in the Good Friday, you have actually took your own cross and come to the From church. that day that Jesus said अपने disciples को, अपने शागिर्दों को, अब आप अपनी स्लीव को उठाकर मेरे पीछे चलें अब। But that's what he told his disciple, that pick up your cross and follow me. क्योंकि स्लीव उठाना बहुत मुश्किल बात है। Because it's very hard to pick up your cross. क्योंकि इस फ्राइडे के दिन पे यहाँ पे एकत्रित होना बहुत मुश्किल बात It's है। very hard to assemble in on और यहाँ पे Friday. खड़े होकर प्रभु की महिमा करना बड़ी मुश्किल And बात it's hard to है। worship God. क्योंकि प्रभु के नाम को और जलाल देना थोड़ा मुश्किल It's होता hard to है। examine his name. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो इंसान अपनी पूरी रूह से, पूरी शिद्दत से, पूरी सच्चाई से प्रभु की महिमा करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है और ढूंढ के अच्छी जगह पे खड़ा करता है। If you worship God with all of your whole heart, soul and mind, God looks for these people and he makes them on the high पर mountain. एक बार याद रखें आज इस शाम में जब हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज परमेश्वर हमें कोई 7 बातें बताना चाहते हैं। So when we're celebrating this day, God want to talk to us in 7 These are different the ways. 7 words that Jesus said when he was crucified. ये 7 बातें उसने बोली जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया मैं था. आपको बताना चाहता हूँ ये 7 बातें कोई आम बातें नहीं थी। So these are not the normal words that he said. ये 7 बातें अभी भी हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई So हैं। those things are still attached to our life. ये 7 बातें हमारे जीवन को और निखारती रहती And हैं। it just examines our life more and more. और ये 7 बातें हमारे जीवन को और बहुत बेहतरीन और पवित्र बनाती And it रहती makes हैं। our life holy and good. प्रभु के वचन में लिखा है जो इंसान परमेश्वर में, एक बात याद रखिए, आज परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया उस बातों को अपनी जहन में रखकर प्रभु की महिमा कर So if सकें। you are in God, God has given you one more opportunity to understand what he wants to talk to you. If you are here right now, you have to say, God, I'm here just because of you. अगर आप यहाँ पे हैं, खुदा के लिए उसको बोलिए, खुदा तेरे लिए मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि सिर्फ. प्रभु जी मैं मानता हूँ कि आपने मेरे लिए इतने कष्ट, इतने दुख को सहा है। Because you suffered so bad for me. सिर्फ God. आपने मेरे लिए इतनी मुश्किलें सही, सिर्फ मैं आपके लिए Just यहाँ because पर of me, you went through so much हूँ।
suffering. Let's see from the word of God what God says today about आइए this. खुदा के कहते It देखते says हैं the cries from the cross. जो रोना है जो क्रूस से निकलता है. ये क्राई जौन सा है जो बहुत बड़ा दुख है, जो सी पीड़ा है, वो क्रॉस से पता लगती So है. Christ is the sad or the things that he went through. क्योंकि ये वो सलीब है जो परमेश्वर ने उस पर अपने हमारे सभी गुनाह, हमारे पाप, हमारी गलतियों को वहां पर पूरा तरह समर्पण कर दिया था. So this cross is a cross wherein God actually nailed all our sins and what bad we do. You know, some people आज भी बड़े अफसोस से हैं, बड़े से दुख जता रहे थे कि today Jesus died for us. आज अच्छा दिन नहीं है. And today many people told me that today is not a good day because they were अगर upset मेरे को because बड़ी Jesus आज died. प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट में मैं जवाब दे रहा था. मैंने कहा you need to rejoice today, you have to worship today कि God ने, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ अच्छा कर दिया है. So I was getting a prayer request and I said them you have to have a rejoice in God because God made everything जो good. रोना था, गिड़गिड़ाना था, वो परमेश्वर ने उठा लिया है. So all the cries and all the suffering he had it on him. आपको रोने की जरूरत नहीं You है. don't have to cry. आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत You don't नहीं have to है. murmur. वो जो पीड़ा थी, वो मुश्किल थी, परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा ली है. So the suffering he took it on him. आपको सफर होने की जरूरत नहीं You है. don't have to suffer like that. कहीं कहते हैं कि कृष्णा नु मसीह लोगों को सफर करना पड़ता है. Many times we hear that Christians have to है suffer. ना, ये इनकी जिंदगी थोड़ी ऐसी होती है. Their life is like that. और नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं होती उनकी. We don't live like है ना, that. उनकी जिंदगी विक्टोरियस जिंदगी है. Their life is a life of है ना, खुशी victory. वाली जिंदगी Their है. life is a life of joy. क्लेम करने वाली जिंदगी Their है. life is a life of वो claim. क्लेम करते हैं कि God यीशु के proclaim. नाम में हो जाए. And we proclaim in the name of और वो Jesus. होता है. And that क्योंकि आप happens बोलते हैं. because you क्योंकि speak. जब आप चुप रह जाते हैं वो काम नहीं होता And है. if you don't speak, nothing happens. जब आप परमेश्वर के नाम में कहते हैं यीशु के नाम में हो सकता है, वो होता But है. when you proclaim in the name of Jesus, it happens. That's a power that God has given through our words, that each and every word is a rhema word. इसलिए वो सामर्थ उसने हमारे वर्ड में दी हुई है कि जो हम बोलते हैं वो होता है. That's what it says. Father, into your hands I committed my spirit. Luke 23:46 यीशु says कहता like है कि this. पिता मैं अपने आपके हाथों में अपनी आत्मा समर्पित करता हूँ. कहते मैं अपने हाथों में अपनी जितनी भी मैं अपना दुख है और जितने भी कष्ट को मैंने सहा है, सब कुछ मैं अब आपके हाथों में देता हूँ. So what all I suffered, what all I went through, I give it all to you, Father. That's the first thing that God expressed it. उन्होंने ये जताया कि सब कुछ मैं पिता आपको अपने हाथों में देता हूँ. That's the first thing he expressed, that whatever is God I'm going through, Father, I give it to you. कितनी चीजें हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं आज. Now ask yourself how many things you give to God. कितने हम सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं. And many will think that we are very smart. हाँ ना, हम कितने सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं. And many times we think we can do it. आप ट्राई करके देखना, आप अपने दिमाग से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से आप कहें कि मैं बहुत समझदार हूँ, करके देखें, प्रभु को पीछे छोड़ के देखें, नहीं होगा. So if you use your intellect or your wisdom or your mind to do the works of God, you see you The won't be able Bible to do says it. when you come in front of God, you say, God, I am nothing, you are everything. तू कर सकता है. प्रभु कहता है अब मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा. वचन कहता है जब तू खुदा के पास जाता है तो कहे उसको कि खुदा तू कर सकता है, मैं नहीं कर सकता. खुदा कहता है now I will open doors for you. Therefore the first word does God say, Father, forgive them for they do not know what they do. ये पहला वर्ड था कि पता है उन्हें माफ कर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे जब हैं. वो सलीब को उठा रहे थे, उठाकर जब उनको सलीब पे चढ़ाया गया, उन पूरे रास्ते में ये करें, Father, just forgive them, they don't know what they do. So when they were crucifying him, he was saying, Father, forgive them. प्रभु जी इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. Forgive them, they don't know what they're क्योंकि जो doing. वो इस करके भी रो रहे थे, उनकी इतनी पीड़ा थी क्योंकि जो शागिर्द थे वो भी उनके साथ नहीं थे. And he was also crying, but the disciples whom he chose and loved them, they were not with them. एक with शागिर्द him. था जो उनके साथ था, उसका नाम यूहन्ना था. So just John was with Jesus. और यूहन्ना परमेश्वर के साथ चल रहा था. And he was walking with और God. प्रभु के वचन में लिखा है प्रकाश की पोथी जो रेवलेशन है वो यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है. And the revelation has been written by John. उस रेवलेशन यूहन्ना के द्वारा इसलिए लिखा क्योंकि परमेश्वर के वो बिल्कुल मौत के बिल्कुल नजदीक तक चला. And the reason God chose him to write Revelations because he went with Jesus right to the death. परमेश्वर अपना रहस्य हमें तब प्रकट करते हैं जब हम परमेश्वर के बिल्कुल नजदीकी चलते And हैं. God gives his revelation into your life when you walk closer to him. परमेश्वर हमसे तब बातचीत करते हैं जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं. And the only reason he talks to you when you walk with him. जब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं दुख में और सुख में, तब तक हम परमेश्वर के खास बातों को और अपने फ्यूचर की ब्लेसिंग्स के बारे में पता नहीं कर सकते. If you're not with God in your joy or in sorrow, he cannot talk to you like that. It's very good to say कि प्रभु जी ऐसे मरते दम तेरे नाल हैं. And we often say that God, till that I'm with you. है ना, हमारे अंदर होता है कि गाने में भी हम कहते थे प्रभु जी हम तुम्हारे साथ हैं. And when we worship, we just say, God, I'm with you. मैं कभी नहीं छोड़ूंगा. I will never leave you. है ना, मैं प्रभु जी मेरे तेरा साथ बहुत अच्छा लगता है. I love your fellowship, God. है ना, ये कहना हमारे लिए बहुत अच्छी बातें हैं और बड़ा इजी होता है. हो And जाता we है. say it, we like saying it, and it's very easy to say. जब कड़के की ठंड पड़ती होती है बाहर, And when there's a cold outside, तो पास्टर जी को फोन करते पास्टर जी
जी ठंड बहुत है, आज नहीं चर्च जाना है. And then you call pastor, it's very cold, I don't want to come to church. It's very hard to come. आज बर्फ पई है बाहर. And it's snow, I can't come to church. हाँ, आज फिर वो वाला वायदा कहाँ गया फिर? So where is that promise that you made to मैं God? भी कहता हूँ मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, मैं आपको लेने आता हूँ. And then I say that I'll bring my car, I'll pick you up. वो कहते पादरी पीछे पै गया. And then I say, this pastor is after me now. ये पादरी नहीं छड़ता है. He won't leave me. है ना, ये चर्च नहीं जाना है आपका. That we won't go to church. Right? He will ask कि आए क्यों नहीं थे? And then he says, why didn't you come? ये ना बाइबल कहती है, परमेश्वर भी कह रहा कहता कि तुम कह रहे थे मेरे साथ चलने के, अब तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो? So Jesus said that you said you want to walk with me, but now where are you? Father said, forgive them. पिता ने कहा उन्हें माफ कर. हमें वो माफी मिल चुकी है. And we have received that forgiveness. हमें वो माफी मिल चुकी है. We have received that अब ये याद forgiveness. करें वो वाली जो हमने गलती की थी, वो उसकी ऑलरेडी हमें माफी मिल So चुकी what है. all things that you've done, God has already इस forgiven you. गुड फ्राइडे पे आप एक प्रण करके जाएं कि प्रभु जी जो मैंने गलती की, गुनाह किया है, जो भी मैंने अनजाने में गलती की है, प्रभु जी मैं नहीं करूंगा क्योंकि तूने मुझे ऑलरेडी माफ कर दिया है. Try to your heart, tell to God, whatever I did, Lord, you have forgiven me. And when you go back home, go प्रभु with जी अब that मैं अपने word. दिल को कठोर नहीं करूंगा क्योंकि तूने कहा है, Father forgive them for they do not know what they do. I won't harden my heart, Lord, because you said that, Father, forgive them. You don't know what माफी they मिल do. चुकी है हमें. God has already That's forgiven. right up to his final hours on earth, Jesus preaches forgiveness. आखिरी घंटों में उसने माफी सिखाई. He teaches forgiveness in the Lord's Prayer. उसने माफी सिखाई खुदा की दुआ में Forgive us our trespasses कि हमारे पाप माफ कर, as we forgive those who trespass against us. जैसे कि मैं उसके पाप माफ करूं जिसने मेरे खिलाफ करे हैं. जिस तरह मैं दूसरों के पापों को क्षमा करता हूं, प्रभु जी तू मेरे पाप को भी क्षमा So as कर. I forgive somebody else's sin, God, you forgive my sin. ये याद रखिए जो आपके साथ साथ बैठे हैं, आप इनकी गलतियों गुनाहों को आज माफ करना है. So the people who are sitting next to you, you have to forgive them. Maybe you don't know each other, किसको आप नहीं भी जानते हो, कहेंगे प्रभु जी forgive him. Even you don't know anyone who is next to you, still say, God, forgive them. अगर आप जानते हो फिर मुश्किल है फिर माफ करना है ना. So if you know it's hard to forgive है them, ना, फिर मुश्किल हो जाता है माफ करना. then it's hard to forgive. पर अगर आप उसको जानते हैं, कहेंगे प्रभु जी I forgive this person today. But if you don't know, then you say, God, I forgive them. आज यही मकसद है जब आप प्रभु के साथ इस जगह पर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु कहते हैं I forgive करें आज. So that's the only way when you worship God, tell him, God, I He forgive preached them. the word of forgiveness. उसने माफी का वचन वो सुनाया, इतनी रूह से इतनी शिद्दत से बोला गया है, and he was said in such spiritual इतनी way जोर से इतनी जान से बोला and गया in such है courage कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ. that I forgive them, मैंने कोई भी गिला और कोई भी ऐसे शिकवा अपने दिल में नहीं रखा है. that I have not have anything in my heart Today, against आज you. चाहे जैसे भी माहौल से सुबह से निकले हो, आज चर्च में आकर कहें प्रभु जी मैं उस इंसान को माफ करता हूँ. No matter how your day spent, tell to God, God, I forgive that प्रभु जी person. मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूँ. I forgive that person. आज प्रभु जी मैं उन लोगों को माफ करता हूँ जिसने मेरे खिलाफ कोई बहुत सारी साजिश की है. I forgive all those people who made plans against me, God. आपका गुड फ्राइडे सफल हो गया. फिर Your Good Friday is done. यहाँ आपका गुड फ्राइडे यहाँ पे आना और बिल्कुल सफल है. So your coming is good. The first thing Bible says, forgive others today. पहली चीज वचन बताती है दूसरों को माफ करना. अगर आप गुड फ्राइडे आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो एक बात याद रखें, बाइबल कहती है forgive them first. If you're celebrating Good Friday, remember that God says you got to forgive. Let's see the second word. The second verse said, truly I say to you today, you will be with me in paradise. दूसरा वर्ड कहता है कि मैं सच तुझे कहता हूँ कि आज ही के दिन तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा. आज मेरे साथ कहां पर होगा? Where will you be today with प्रभु me? के वचन में लिखा है, जिसने अपने पूरे ईमान से, पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से यीशु को नजाते हिंदा कबूल किया है, जीवन की पोथी में उसका नाम दर्ज हो The word of चुका है. God says, who accepted Christ with all of his heart, soul and mind, his name has been written in the book of life. है ना, उस वहां पर जो नाम यहाँ पर लिखा गया है वहां पे कोई मिटा नहीं सकता है. And when the name is written there, nobody can है ना, erase that वहां पे कोई name. रबड़ नहीं है कोई ऐसे मिटा दे. So there is no rubber who can erase it. जहां पर आपके परमेश्वर ने आपको कहा कि अब तुम्हें शैतान हाथ नहीं लगा सकता, वो हाथ नहीं लगा सकता. Wherein God said that no devil cannot touch you, he can never touch I'm you. telling you, on that very moment, that was a very crucial moment that Jesus said, today you will be with me in the paradise. बहुत एक crucial moment था, उसने बोला था कि तू आज ही के दिन मेरे साथ क्योंकि स्वर्ग में जितने होगा. दो डाकू थे वो कह रहे, एक डाकू कह रहा कि हाँ तू अपने आप को बड़ा संत महात्मा कहता, आप भी बचाओ मुझे भी बचा. So one was testing that you call yourself God, you be saved and save me also. This is something very, हमारे जीवन में ये बातें बहुत चलती है. प्रभु जी अगर कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतनी पावर है, इतनी समर्थ है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतना विश्वास है, तो ये मैं कार्य को पूरा कर सकता हूँ. So when you have a courage in your life, you say, God, you have given me strength and I can do it in your courage. हमें कई बार हम अपने विश्वास को बहुत टेस्ट करते हैं. We at times test our faith. यहाँ पर अपने विश्वास को इतना हम तोलना शुरू कर देते हैं कि प्रभु जी मेरा विश्वास बहुत अच्छा है और मैं अपने पूरे विश्वास से कर सकता हूँ. And at times we say that our faith is so good and we can do it. Which is good कि आप विश्वास रखते हो, अपने विश्वास पे पूरे कायम हैं और टिके हुए हैं. बहुत अच्छी बात है, you are stuck on your पर faith. अपने विश्वास पे
जब टिके हुए हैं, पर याद रखें कि आपके विश्वास से वो चीजें पूरी होती जरूर है, पर वहां से आंसर वहां से ही मिलता है. But when you put your faith and you ask for things, that happens, but you get the answer from heaven. It's not about कि आंसर आपके जीवन में नहीं है. It doesn't mean that you don't have answer in your life. आंसर प्रभु के पास है, फेथ आपके पास है. Answer is with God, faith is with you. विश्वास आपके पास है, आंसर उसके पास है. Faith is with you, answer is with God. जब आप कहते हैं पूरे विश्वास से कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु में विश्वास करता हो सकता है. So when you say in the name of Jesus, I believe this can be done, this can be done. और प्रभु कहता है कि तू आज मेरे साथ उस स्वर्ग में होगा. And that's what Jesus said, that today you will be with me in paradise. आज अगर प्रभु से आप कह रहे हैं कि प्रभु जी मैं अपने गुनाह अपने पाप को मानकर उसे छोड़ देता हूं, प्रभु कहते हैं आज मेरे साथ आने वाले टाइम में आप मेरे साथ उस स्वर्ग में होंगे. So when you say God, I repent my sins, I'm going to leave it, God says you will be in the coming days with me. Jesus said that I'm going